Today we are going to study the equations of motion, which are the relation among velocity, acceleration, time and distance. इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करने वाली जो इक्वेशंस होती हैं, ऑल दीज इक्वेशंस आर नोन एज इक्वेशंस ऑफ मोशन. देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. First equation of motion is known as velocity acceleration relation. That means in this equation there is velocity and acceleration relation, that is v equal u plus at. Second equation, s equal ut plus half at square. It is relation between distance and acceleration, and it is also known as distance acceleration relation. And third equation is v square equal u square plus 2as, that is velocity and distance relation. There are three equations of motion. You can observe that there are change in velocity, that means initial velocity and final velocity. Time is already changed. In second equation, initial velocity is constant, time variable and distance is also variable according to time. And in third equation, velocity and distance both are variable. Among all three equations of motion, we can observe that acceleration is always constant. That is, in this equation, acceleration is always constant. Due to this, we can also observe that these three equations of motion on the basis of constant acceleration. Graphically, all these equations of motion are derived by using uniform accelerated velocity time graph. हमने भी आपको ये कहा था कि इसमें acceleration constant है. Due to this, we use uniform accelerated velocity time graph to derive all these equations of motion. There are two results of the velocity versus time graph. Velocity versus time graph में ऑलरेडी स्टडी कर रखा होगा आपने कि इसकी मेन दो रिजल्ट होते हैं. फर्स्ट रिजल्ट इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स आउट एक्सेलरेशन. दैट मीन्स वी कैन कैलकुलेट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. Then it gives out acceleration, that means numerically it is equal to acceleration. And second is area under VT graph gives out distance or displacement when and in a particular time interval. Since we know that all the equations of motion can be derived by using uniformly accelerated velocity versus time graph. It is uniformly accelerated velocity versus time graph in which body start its motion with initial velocity u, and after t second its velocity becomes v. That means from 0 to t second its final velocity becomes v. Now according to this equation, for first equation of motion we have to use result of vt graph. Number one result, since we know that slope of vt graph is equal to acceleration. ठीक, ये acceleration होता है. अगर हम यहां पे स्लोप निकालें, स्लोप दैट मीन्स ये एंगल, इंक्लिनेशन फ्रॉम टी एक्सिस like this angle is known as inclination, inclined angle from t axis. t axis से कितना inclined है, इसी चीज को हमने स्लोप के रूप में डिराइव करना है. according to definition acceleration, that means slope, ये इक्वल, ये डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, BC अपॉन AC, इट इज अ स्लोप. BC अपॉन AC ये स्लोप है. डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप यहां देख सकते हैं तो BC की वैल्यू कितनी है, BC इक्वल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वेलोसिटी इज v, यहां से लेकर यहां तक वेलोसिटी v है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दैट मींस इनिशियल पॉइंट टू दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स वेलोसिटी इज u, दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी इज u. एंड फॉर v velocity it takes t time तक इसने यहाँ पर कवर किया. यहाँ पर
तो देयरफॉर BC की वैल्यू अगर हम इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे देख सकते हैं V माइनस यू ये वैल्यू, एंड AC इक्वल हो जाएगा T. पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर स्लोप ये इक्वल V माइनस यू डिवाइडेड बाई T. ये इक्वेशन बनी. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन A ये इक्वल V माइनस यू डिवाइड बाई T. दैट मीन्स इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, this multiply by this equation and this multiply by this equation, it gives out V minus u this equal AT and V equal u plus AT. It is first equation. In this equation velocity change from u to V in t second at constant acceleration. This कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर टी सेकंड में इसकी वेलोसिटी u से v हो जाती है, और इस इक्वेशन को यूज करके हम किसी टी सेकंड के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को जब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रही होती है वी कैन कैलकुलेट इट. ठीक. नाउ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसी ग्राफ को यूज करके ड्राइव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इस ग्राफ में हमें वीटी ग्राफ के सेकंड रिजल्ट को यूज करना होगा. सेकंड रिजल्ट देखिए होता क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ इक्वल डिस्टेंस. ये डिस्टेंस देता है, और डिस्प्लेसमेंट वो कंडीशन डिपेंड करता है कि नीचे है या ऊपर है. यहां पर इन केस एनी बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट मीन्स व्हेन t इक्वल 0 एंड आफ्टर t सेकंड इट वेलोसिटी बिकम्स v. वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मच डिस्टेंस covered by this object from 0 to t second. That means particular time interval के बीच में कितनी डिस्टेंस इसने कवर किया, हम इस इक्वेशन को यूज करके यहाँ पर निकाल सकते हैं. तो अगर हम रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ये एरिया निकाल लें, जो शायद एरिया यहाँ को दिख रही है शेडेड एरिया, इस एरिया को कैलकुलेट करें तो दिस एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस. एरिया है बट ये न्यूमेरिकली इक्वल टू डिस्टेंस के बराबर होगी. आइए हम इस चीज को यूज करते हैं. देयरफॉर डिस्टेंस ये इक्वल एरिया ऑफ ओ ए बी सी टी ओ इंक्लोज. इस कंप्लीट इंक्लोज्ड पार्ट का हमें एरिया कैलकुलेट करना है. इसको हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है. फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड सेकेंड पार्ट इज दिस. दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. अभी के यहां पर डिस्टेंस इक्वल फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा है ये, ओ ए सी टी, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. यानी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया. सम ऑफ दिस टू एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू दिस इंक्लोज्ड एरिया. इस इंक्लोज्ड एरिया के बराबर होगा. देयरफॉर अब यहां देखिए फ्रॉम O टू A इट इज U एंड A टू C इट इज T. यहां से लेकर यहां तक ये T टाइम है, हम इसको T लेंथ के रूप में ले सकते हैं. तो देयरफॉर एरिया इसकी अगर निकालना है तो O A इंटू A C, इसके एरिया इस तरह से निकाल सकते हैं, प्लस ट्रायंगल ए बी सी, इसकी एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस मीन्स AC एंड हाइट मीन्स BC. ये एरिया निकल सकते हैं. इस तरह से सारी कैलकुलेशन हम लोगों को इस एरिया के फॉर्म में हमने यहां पर कर लिया. OA अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन it become S OA U into AC. It is equal to OT. OT के बराबर that means T plus half into AC T and into BC V minus U. ये रिजल्ट बना. From first equation you know that V minus U equal AT. ये चीज अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन में इसको ड्राइव किया था. हम इस रिलेशन को यहां पर यूज करते हैं. पुटिंग द वैल्यू ऑफ V माइनस यू फ्रॉम दिस रिलेशन एट दिस पॉइंट. देयरफॉर S इक्वल UT प्लस
हाफ इंटू टी इंटू ए टी, सॉल्विंग दिस यू टी एंड प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये रिलेशन आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाती है, जिसमें हम यहाँ पे s दिस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये रिलेशन हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो देयरफॉर वी कैन ऑब्जर्व दैट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो डेराइव्ड बाय यूजिंग यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड वेलोसिटी वर्सेस टाइम। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो डेराइव्ड बाय यूजिंग दिस ग्राफ। इसी ग्राफ को यूज करके हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव कर सकते हैं, और इसी रिजल्ट को हमने रिजल्ट अभी लिखा था कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ ये इक्वल डिस्टेंस। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोगों ने इसी से ड्राइव किया था, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसी ड्राइव करते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को स्क्वायर करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ग्राफिकली अगर सॉल्व करना होता है तो वी हैव टू यूज ग्राफ। ठीक, इसको स्क्वायर करके आप मत सॉल्व कीजिए, यहां से हम लोग सॉल्व करना होता है कि ग्राफ को यूज करके ही हम इस चीज को यहां पर ड्राइव करें, दैट मींस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करें। इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने इस पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज दिस रेक्टेंगल एंड सेकंड पार्ट इज ट्रायंगल। एंड टू डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन कंसीडर दिस होल एरिया इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपीजियम। इसको हम पूरा ट्रेपीजियम मान सकते हैं, और इस ट्रेपीजियम की एरिया निकालेंगे तब यहां पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। नाउ डिस्टेंस ये इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी टी ओ एंड ए, इस पूरी एरिया को हम ले सकते हैं। ठीक, दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कौन सा होगा? ए बी सी टी ओ, ये ट्रेपीजियम। इस ट्रेपीजियम में इन विच ओ ए and BT are two parallel side, and AC या OT is a perpendicular distance between two parallel side। इन दोनों parallel side के बीच की ये perpendicular distance है, और ये दोनों parallel side है। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, दिस इज इक्वल टू सम ऑफ parallel side, that means BT that means B to T, ये V and plus AO into perpendicular distance AC divided by 2। फॉर्मूला ये होता है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। ये ट्रेपीजियम की एरिया का फॉर्मूला होता है। नाउ इसमें हम सारी वैल्यूज को पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। एस दिस इज इक्वल, ये वैल्यू क्या है? BT V प्लस AO U इंटू T डिवाइड बाई 2, ये रिलेशन होता है। अब अगर हम इसमें T की वैल्यू यहां से निकालें, ये इसका रिलेशन यूज करिए, दिस रिलेशन T इक्वल V माइनस U डिवाइड बाई A, पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर B प्लस U in one bracket, and in place of T we can put this value V minus U divide by A and total divide by 2, ये वैल्यू आती है। Now S equal V plus U V minus U divide by 2A, ये रिलेशन बना। अब इसको अगर सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर देखिए हमारा रिलेशन क्या आता है, मल्टीप्लाइंग क्रॉस मेथड, this into this into this, तो v स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी, दैट मीन्स b प्लस u v माइनस u becomes v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a, ये वैल्यू बनी। ये इंप्लाइज करता है कि v स्क्वायर दिस इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a, ये s है, S 2AS, ये एक रिलेशन बन जाता है।
इस रिलेशन से हम लोग यहाँ पर देखिए एक नई इक्वेशन बन गई, v स्क्वायर इज इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो डिराइव्ड बाय यूजिंग दिस ग्राफ एंड आल्सो रिजल्ट इज आल्सो सेम, एरिया अंडर vt ग्राफ। सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन बोथ आर डिराइव्ड बाय दिस रिजल्ट। सेकंड इक्वेशन में हमने इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, एंड थर्ड इक्वेशन के लिए हमने इस पूरी एरिया को ट्रेपीजियम माना। इस तरह से दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली हम डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दिस टॉपिक वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट मीन्स ऐसा मोशन जो कि सर्कुलर हो और साथ ही साथ में यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म की कंडीशन देखिए किस तरह से है। इन केस मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, इट इज द सर्कुलर पाथ, center, an object is moving along this circular path. At this point, its velocity is this. मान लीजिए इसकी velocity यहाँ पर v1 है, ठीक, v1 velocity यहाँ पर है। At this point, its velocity becomes v2। ठीक है, हमने कहा v2 velocity, v1 is this and v2 is this, and same things condition यहाँ पे है, इसकी velocity v3 हो गई। और ऐसे अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी v4 हो जाती है। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग हो जाता है, बट v1 मैग्नीट्यूड इक्वल v2 मैग्नीट्यूड इक्वल v3 एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल v4 एंड इट्स मैग्नीट्यूड। इफ दिस कंडीशन अप्लाई, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, when an object is moving along a circular path with a constant speed, then constant speed कहा, velocity नहीं, constant speed, then this type of motion is known as uniform circular motion। इसमें ये देखें कि अगर इन केस कोई भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन करती है, तो इसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें इसकी पूरी डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होगा। दैट दिस डिस्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस c इट इज इक्वल टू पाई r। r मींस इट्स रेडियस, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस मान लीजिए r है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस, एंड टाइम फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल, टाइम फॉर वन साइकिल दैट मीन्स एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको मान लीजिए t टाइम लगा। देयरफॉर स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड बाय 2 पाई r टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इस पर न्यूमेरिकल एक दिया गया है, एनसीईआरटी में सबसे लास्ट न्यूमेरिकल इसी बेस पर है। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में और कुछ देना चाह रहा हूं। जैसे इन केस मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ में कौन कौन से डिस्प्लेसमेंट होते हैं, कैसे क्या होती हैं, बट ये थोड़ा सा ही डिस्प्लेसमेंट आपके कोर्स में है। मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ का ये सेंटर है। एनी ऑब्जेक्ट इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर है, और ये P1 से लेकर के आफ्टर सम टाइम इट्स पोजीशन बिकम P2। इस डिस्टेंस को हम r बोलते हैं, यहां से लेकर यहां तक डेल्टा s, और इसे डिस्टेंस बोलते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, ये इसकी रेडियस हो गई। हम इस एंगल को, ये एंगल जो यहाँ पर बनी है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखिए ये कितना डिस्टेंस हो गया, डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर। यहां से हम मैथ का ये सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज इक्वल डेल्टा एस डिवाइडेड बाई आर। इसी तरह से वेलोसिटी का निकालते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी यहां से निकाल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज नोन एज the rate of change of linear displacement is numerically equal to linear velocity. In same way, if we calculate the rate of change of angular displacement is numerically equal to angular velocity, therefore यहाँ पर क्या हो जाएगा, angular displacement delta s
डिवाइडेड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग डेल्टा थीटा लिए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, दैट मीन्स टाइम इंटरवल। ये आपका यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो जाती है। इसको हम यूनिट के रूप में लेते हैं रेडियन, और इसे लेते हैं रेडियन पर सेकेंड, ठीक। इस तरह से एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन बदलने से, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने से उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। और इसमें वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन होता है। देखिए यहाँ पर अगर गई तो इस समय इसके अंदर एक एक्सेलरेशन लगता रहता है, यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन लगता रहता है। जैसे ये बॉडी यहाँ पर जा रही है तो इसको सेंटर की ओर खींच लेता है, ये इस तरह से। जिस मान लीजिए यहाँ पर है तो इसको ऐसे खींच लेगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर जा रही है तो इसको इस तरह से खींचेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से इस पर हमेशा सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लगता रहता है। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, which is responsible to change the direction of motion. And due to change in direction of motion, its velocity is always changing at every point. But magnitude of velocity is always constant, and speed is also constant. And speed can be calculated by using this formula.